Hello everyone, this is Katie here. In this video today, we are going to learn about community meals. All of you know what are community meals. Community meals are meals which the different communities of the people come together and organize a food distribution and food eating campaign where everyone gets the food by everybody's contribution. We live in a time of overabundant food production, but despite this, millions of people in India go hungry every day. In this aspect, community meals act as a boon for India. So in this video, we are going to know more about community meals in details. I'm going to explain you about community meals. This is the third video of our chapter, Eating with Everyone. In the first video, I have already explained the chapter. So keep on watching this video from beginning to end. Happy digital learning. Have a good day. Community meals. Community meals. In Hindi, it is called Samudayik Bhojan. Community meals, which is called in Hindi Samudayik Bhojan. What are community meals? Community meals are meals which are eaten together by different people of the community together, by everybody's contribution, by everybody's help. And a great number of people, that's mean the mass eating of different people in the community is called community eating. We live in a time of overabundant food production. But despite this, millions of people in India go hungry every day. In particular, the recent and continuing phenomena of rising food prices has resulted in a considerable section of the urban population facing serious food insecurity even as the urban economy grows rapidly. हमारा देश भारत किसानों का देश रहा है, जहां पर खाने पीने की कभी कमी नहीं रही। भारी मात्रा में भारत में खाने की उत्पत्ति की जाती है, अनाज की उत्पत्ति की जाती है, पर इसके बावजूद लाखों लोग, करोड़ों लोग को भूखा रहना पड़ता है, भूखा सोना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग अपने खाने के वितरण को ऐसे सिस्टम में बांधे हुए हैं जो समाज के सभी लोगों के पास भोजन का वितरण नहीं पहुंचता। बढ़ती महंगाई और महामारी तथा ट्रांसपोर्टेशन और खाने ले जाने और लाने के साधन की कमी के द्वारा कुछ लोगों को भूखा रहना पड़ता है। इसलिए इस भूखमरी को हटाने के लिए कम्युनिटी किचन का आयोजन किया जाता है। कम्युनिटी मील्स लोग खाते हैं, जिस पे बड़े पैमाने में, बड़े मात्रा में लोग एक साथ बैठकर भोजन खा सकते हैं। बड़े मात्रा में भोजन का आयोजन किया जाता है। सामुदायिक भोजन जिसे कहते हैं, जैसे लंगर, भंडारा, दुर्गा पूजा के भोग, अष्टमी तथा ऐसे कई, जैसे ईद में इफ्तार पार्टी, ऐसे कई कम्युनिटी मील्स
का आयोजन किया जाता है। ऐसे कई सामुदायिक भोजन जिसके कारण लोगों की भूख मिटती है तथा सभी लोगों को खाने का मौका मिलता है और समाज में भाईचारा और मानवता बनी रहती है। तो लेट्स सी कि how important this community meals for India. In a bid to tackle the chronic hunger of India's poor, in the recent years, more and more states across the country have been rolling out soup kitchens for the poor. और इस विविधता, इस प्रॉब्लम, इस समस्या का हल निकालने के लिए विभिन्न राज्य के भारतीय सरकार अपने कामों में जुड़े हैं ताकि लोगों को भूखा सोना और रहना ना पड़े, लोग भूखे ना रहें। और इसलिए कम्युनिटी किचन का भी आयोजन किया गया है। बड़े बड़े स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी किचन बनाए गए हैं या कैंटीन या मेस, जहां पर कम दामों में खाने का प्रावधान है, जहां पे लोग कम दामों में पेट भर खाना खा सकते हैं। Usually running alongside a government initiative, soup kitchens are meal centers where food is offered to the hungry for free or at a reasonably low price. For example, अगर हम लोग एग्जाम्पल ले चेन्नई की, for every morning in Chennai and once again and around noon, one can notice long lines of people outside the Amma canteens in the city. Among the clients, one can find daily wage laborers, head roll loaders, factory workers, security guards, domestic workers, auto rickshaw drivers, street vendors, and construction workers, interspersed with children. तो सरकार ने ये कम्युनिटी किचन बनाकर लोगों में खाने की सुविधा दी है। जैसे कि एग्जांपल हम देख सकते हैं चेन्नई में अम्मा किचन, अम्मा कैंटीन जो होता है, ये अम्मा कैंटीन एक ऐसी कैंटीन है चेन्नई में जहाँ पे कम दामों में लोगों को खाने का खाने की सुविधा देती है, जिससे गरीब लोग जैसे रिक्शा ड्राइवर, रास्ते में फुटपाथ में कुछ बेचने वाले, गरीब लोग, घरेलू घरों में काम करने वाले नौकर और रिक्शा ठेला वाले, ये लोग कम दाम में इन्हें खाने की सुविधा मिलती है और ये अपने 2 वक्त का खाने का गुजारा कर लेते हैं कम दामों में। ये अम्मा किचन जो चेन्नई में चलाया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कम्युनिटी किचन और कम्युनिटी मील्स की क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या महत्व है। What is the importance of community meals and community kitchen? You must have understood. Now I am going to explain the different community meals organized in the society by the religious system of the country or by the community people. They organize community meals. अब मैं समाज के कुछ ऐसे कम्युनिटी मील्स के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो कम्युनिटी मील्स का आयोजन किया जाता है ताकि लोग खा पाए। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल लंगर। लंगर की बात करते हैं। क्या है लंगर? द लंगर ऑफ फ्री कम्युनिटी किचन is a hallmark of the Sikh faith. It was established by the first Guru of Sikhism, Guru Nanak Dev Ji, around the year of 1481.
तो ये कम्युनिटी मील जो है, जो लंगर जिसे कहते हैं, ये सिखों द्वारा आयोजित किया जाता है और जिसे पहली बार गुरु नानक देव जी ने 1481 ईस्वी में आयोजित किया। It is designed to uphold the principles of equality between all people of the world, regardless of religion, caste, color, creed, age, gender, or social status, to eliminate the extreme poverty in the world, and to bring about the birth of caring communities. In addition to the ideals of equality, the tradition of Langar expresses the ethics of sharing, community, inclusiveness, and oneness of all humankind. तो ये लंगर के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है, ताकि लोग इसी जागरूकता के कारण लोगों में खाने का आयोजन कराए, ताकि कोई भी भूखा ना रहे, समाज में समानता फैले और सभी को खाने की सुविधा मिल सके, बिना जाने हुए उसकी जाति, रंग, रूप, उम्र, लिंग, जाति, प्रजाति, सामाजिक व्यक्तित्व, सामाजिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा, ऊंच नीच, जात पात, ये सभी से दूर होकर लोगों में एकाग्रता की भावना है, समानता की भावना है, सभी को भोजन मिल सके और कोई भी भूखा ना रहे, इस विचार से लंगर का आयोजन किया जाता है। The institution of Guru Ka Langar has served the community in many ways. It has ensured the participation of women and children in a task of service for mankind. Women play an important role in the preparation of meals, and the children help in serving food to the Pangat. That means to the people. Langar also teaches the etiquettes of sitting and eating in a community situation, which has played a great part in upholding the virtues of sameness of all human beings, providing a welcome, a secure and protected sanctuary. Everybody is welcome to share the langar. No one is turned away. The food is normally served twice a day, every day of the year. Each week, a family or several families volunteer to provide and prepare the langar. This is very generous, as there may be several hundreds people to feed, and caterers are not allowed. All the preparation, the cooking, and the washing up is done by volunteers and or by voluntary helpers who organize it, who are called सेवादार्स। लंगर का आयोजन बड़े मात्रा में किया जाता है ताकि सभी को भोजन मिल सके। गुरु का लंगर हर रोज खिलाया जाता है, दिन में 2 बार। लंगर का आयोजन आप दिल्ली में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में भी आपको पाया जाएगा, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यहाँ तक कि भारत के सभी राज्यों में ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ सिख जाति मिलती है, आपको लंगर का आयोजन भी मिलेगा। प्रत्येक हफ्ते कुछ परिवार या कुछ वॉलंटियर्स मिलकर इस लंगर का आयोजन करते हैं और कई 100 लोगों को खिलाते हैं। और यहाँ कैटरर्स लोगों को आयोजित और इस्तेमाल नहीं किया जाता खाने परोसने के लिए,
जो वॉलंटियर्स हैं, जो सेवादार हैं, जो स्वयं को सेवादार कहते हैं, वे स्वयं लोगों को खाना परोसते हैं, यहाँ तक कि खाना बनाते हैं और उनके बर्तनों या उनके पत्तलों को भी, जूते पत्तलों को भी उठाते हैं सेवा के भाव से। तो आप देख सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है लंगर का कम्युनिटी मील्स पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कम्युनिटी मील्स ऑफ लंगर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आशा है आप यहां तक समझे होंगे। नाउ लेट्स कम टू भंडारस। अब देखते हैं भंडारस क्या है और इसकी क्या महत्व है। लेट्स सी व्हाट आर भंडारस एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन कम्युनिटी मील्स। लाइक लंगर, भंडाras are organized by the Hindus organization, and it is organized in temples, by the ashrams, and by the Hindu religious organization. These bhandaras are organized to feed the masses in huge amount. In many Indian festivals, these bhandaras are done, organized, like Kumbh ka Mela, Chhat Puja, Shivratri, and many other such occasions, religious occasions. These bhandaras are organized. Bhandaras जो हिंदू महासभा और हिंदू पंडितों द्वारा या हिंदू मंदिरों द्वारा या आश्रमों द्वारा महाभोजन का आयोजन किया जाता, भंडारा के रूप में बड़े पैमाने में लोगों को खिलाया जाता, बड़े मात्रा में लोग खाते हैं, ये भी कम्युनिटी मील्स है, सामुदायिक महाभोजन। With the celebration of joy and spiritual spirit, Bhandara will be organized every time, whenever any occasion occur. Bhandara is a kind of food, a joint venture where food is distributed in no price and behave as serving to humanity. भंडारा का आयोजन किया जाता है निःशुल्क, लोगों से कुछ भी पैसे नहीं लिए जाते, उन्हें मुफ्त में खिलाया जाता है ताकि लोगों में समानता आए और उन भोजन का सेवन कर सके और कोई भी भूखा ना रहे। भंडारे का मेन लक्ष्य यही होता है। स्टोरेज एंड प्रिपरेशन ऑफ भंडारास ऑर्गेनाइज्ड by the organization of the religious group. It is not an easy task to serve thousands of people every day for a month or for any occasion. ये इतना आसान नहीं है भंडारा का आयोजन करना कि बड़े पैमाने में, लाखों के पैमाने में लोगों को खिलाया जाता है। ये बहुत मुश्किल काम है। कुंभ के मेले में बहुत बड़े पैमाने में, बहुत बड़े मात्रा में भारत के विभिन्न स्थानों और राज्यों में कुंभ के मेले के वक्त काफी भंडारा लगता है। हर रोज खिलाया जाता है जब तक कुंभ का मेला चलता रहता है, कुंभ का त्योहार चलता रहता है, तब तक भंडारे में रोज मुफ्त निःशुल्क लोगों को खिलाया जाता है। ये आश्रम और धार्मिक स्थानों या धार्मिक संस्थाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। So Bhandara is organized every month, every day of the month of the religious occasion of Kumbh, and this is organized by the ashrams and the religious organization. तो आपने देखा भंडारा, क्या उसकी विविशिका है, क्या उसके महत्व है, एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंस इन द कम्युनिटी ईटिंग। ये सभी कम्युनिटी ईटिंग का लक्ष्य एक ही है, समाज से भुखमरी हटाना,
और समाज का सेवा करना, चाहे वो लंगर हो या भंडारा, चाहे इफ्तार हो रमजान के, सभी का मकसद एक है, समाज की सेवा। तो दिस वर ऑल भंडारा विच आई हैव एक्सप्लेन। तो अब आप भंडारा के बारे में भी समझ गए होंगे। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। दुर्गा पूजा के समय अष्टमी के दिन महाभोग पकाया जाता है और इस दिन भी बड़े पैमाने में, बड़े मात्रा में लोगों को खिलाया जाता है एज अ कम्युनिटी ईटिंग। अलग अलग तरह के भोग पकाए जाते हैं। लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। लोगों को, अपने परिजनों को इस दुर्गा पूजा के महाअष्टमी के दिन दावत दिया जाता है, उसे निमंत्रित किया जाता है। लोग एक दूसरे को अपने घर में बुलाते हैं और ये भोग या कम्युनिटी लंच के नाम से महाअष्टमी के दिन पूजा कमेटी द्वारा या किसी परिवार के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा पूजा भोग दुर्गा पूजा के समय अष्टमी के दिन इस महाभोग का आयोजन किया जाता है, जहां बड़े पैमाने में लोगों को स्वादिष्ट भोजन जैसे पूरी, कचौरियाँ, जिलेबी, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ पकाई जाती हैं एंड दिए जाते हैं। Friends wait patiently for the bhog to be served while carrying on with their adda. Adda mean gossiping. No people miss this joy, this religious occasion, and they wanted to spend their time with their friends, with their families, with the people, and they organize this type of ayojan, this type of community eating plan program, and they organized the bhog offered during the puja includes an assortment of dishes and sweet such as khichdi, pulao. This is accompanied with a variety of bhajas like fries, kalai daler bari, masala bari, and for the desserts there are rasagulla, doi, payos, jibe gara, and narkel sandesh. Main items prepared in the large quantity is khichdi, a preparation of rice and lentils with masalas. Its taste is heavenly. The other items served along with khichdi are mixed vegetables, curry, couple of vegetables, fries, sweet and sour tomato chutney. Finally, one sweet is given, which is usually rasgulla. So this is organized in महाअष्टमी पूजा भोग। तो आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं मुसलमानों का इफ्तार पार्टी में। मुसलमान भाई भी, उनका सबसे बड़ा त्योहार ईद होता है। ईद में भी वो लोग कम्युनिटी ईटिंग, सामुदायिक भोजन का आयोजन करते हैं, जिसे इफ्तार पार्टी बोला जाता है। इफ्तार पार्टी के नाम से आयोजन किया जाता है। The act of eating together is advocated in Islamic sources. The Hadith recounts the word of the Prophet Muhammad and states that whoever has served enough for 2 persons should take a third, and whoever has food enough for 4 persons should take a 5th or a 6th, for blessing is in jamas, that is gathering, being together. तो लोग रमजान के महीने में 1 महीना भूखे रहते हैं और शाम को खाते हैं, इसे इफ्तार कहा जाता है। और इस इफ्तार में कई मुसलमान भाई एक साथ मिलकर अपना इफ्तार खोलते हैं। अजान के साथ कई तरह के पकवान पकाए जाते हैं और इस तरह से कई लोगों को मुफ्त में इफ्तार खिलाया जाता है और समाज में समानता तथा भूखमरी हटाई जाती है और समानता का स्थापित किया जाता है। तो I have explained you what are community meals, what are different types of community meals in our society and what are their purposes. तो मैंने इस वीडियो में आपको समझाया कम्युनिटी मील्स क्या है, सामुदायिक भोजन क्या है, क्या इसकी
विशेषता है और क्या महत्व है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप समझे होंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।